Assalamu alaikum students. This is the third week of March. Now the oral of this week is parts of body name, animals name and keeper's diary. Now start your oral. This is the part of body name: eye, nose, lips, hand, ear. These are all the name of parts of body. Now start animals name: dog, cat, cow, duck, lion. Now start your keeper's diary. Keeper's diary. The name of your RT book is Keeper's Diary. Now revise page number 1 to 8. Page number 1. Monday. It was a wet day. Tuesday. It was a windy day. I went to the shops. Page number 4. Wednesday. It was a sunny day. Page number 5. I went to the pool. Page number 6. Thursday. It was a hot day. Page number 7. I went to the park. Page number 8. Friday. It was a fun day. Now revise all the pages and all the oral at home. This is your English book of prayer 2. Now let's start the work of third week of March. Page number 211, 211. Our topic is opposites. Our topic is opposites. Have you learned about opposites? आप पहले भी opposite के बारे में पढ़ चुके हैं. Now what? Match the opposites. आपको यहाँ क्या करना है? Opposites को match करना है. You have to see short, short. The opposite of short is long. देखिए यहाँ पर girl के जो hair हैं वो short हैं. So where is the girl who have long hair? Yes, there is a girl which have long hair. So we have to match these two together. Now big, big. So very small. Elephant is big and rat is very small. So we have to match elephant to the rat. Slow. Turtle walk very slowly and rabbit run very fast. So we have to match slow and fast. Now turn page number 212. There is also same work in. There is a butterfly in the jar. So where is the butterfly is out from the jar? Yes, here is a butterfly out from the jar. So we have to match it together. Tall. This girl is tall and this girl is short. So we have to match together. Asleep. The cat is asleep here. And here is a cat which is awake. So we will say asleep, awake. Asleep, awake. So we have to match it together. With the same pattern you have to complete 203 page. Page number 203. And page number 214. Page number 213 and 14. You have to complete this topic. Now come on page number 206. There is some professions, occupations. Now here are some pictures with the name, number. आपके पास यहाँ पर कुछ pictures हैं जिनके पास कुछ number given है, ठीक है? And there are some name of these occupation. जो ऊपर pictures हैं यहाँ पर उन्हीं के आपको नाम दिए गए हैं occupation के कौन क्या काम कर रहा है.
अब हर पिक्चर के ऊपर उसका नंबर गिवन है। आप जैसे यहाँ पर सपोज करें यहाँ साइंटिस्ट लिखा हुआ है ना, यू हैव टू फाइंड द साइंटिस्ट, दैट साइंटिस्ट कौन से नंबर पे मौजूद है। वेयर इज साइंटिस्ट, कैन यू फाइंड द साइंटिस्ट हियर? यस, हियर इज अ साइंटिस्ट. So which is the number? 1. So you have to write the number in the box 1 in front of scientist. Now carpenter. कारपेंटर किसे कहते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं, वुड का काम करते हैं. Now you can see here is a carpenter. कोई है जो लकड़ी का काम कर रहा है यहाँ पर? Yes, here is a carpenter on number 7. So you have to write number 7 in the box in front of carpenter. Soldier. सोल्जर किसे कहते हैं? सिपाही को, जो वतन की रखवाली करते हैं. ठीक है. सो यू कैन यू सी द सोल्जर हेयर? कोई सोल्जर आपको यहाँ दिख रहा है? यस, हेयर इज अ सोल्जर. नंबर 4. ऑन नंबर 4, सो यू हैव टू राइट द नंबर 4 हेयर इन फ्रंट ऑफ सोल्जर. विद द सेम पैटर्न यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज. 206, 207 and 208, 208, 205, 206, 7 and 8. You have to complete these pages with the same pattern. Okay, now this is your Urdu copy and the work is हे की लिखाई. यहाँ पर अब आपको हे और उसकी छोटी शक्ल ह लिखना है. So now let's start your work. This is your classwork and homework page. हे, ह. Write again. हे, ह. हे, ह. बहुत सिंपल वर्क है. आपको सेंटर की 2 लाइन में करना है, जो आपकी ग्रास लाइंस होती हैं. यू हैव टू मेक इट इन द ग्रास लाइंस. हे, ह. This is your classwork and homework page. Now the topic is गिनती 1 से 10. आपको उर्दू गिनती करनी है 1 से 10. Now let's start your work. We will start all the numbers with skyline. हम तमाम नंबर्स को स्काई लाइन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 में हम जो है वो 1 बना के और फिर ये 0 इस तरह बनाते हैं. ठीक है. नुक्ता लगाते हैं. आप पूरा सर्कल नहीं बनाइएगा, ये सर्कल जो है वो रॉन्ग होता है. ठीक है. 0 पूरा ऐसे नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ नुक्ता लगाएंगे. इस तरह से आप अपना क्लास वर्क और होमवर्क का पेज कंप्लीट करेंगे. नाउ दिस इज योर उर्दू बुक, पेज नंबर 147. 147. पेज नंबर 147. यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़िए. तस्वीरों की मदद से दुरुस्त आवाज़ की पहचान करवाइए. दुरुस्त सिम से हे लिखने की मशक करवाइए. आपके पास दिख रहा है आपको हे लिखा हुआ है. कौन सा हुर्फ है ये? हे. हे कैसे बनता है? ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये हे. हे की आवाज़ क्या होती है? ह हाथी, ह हथौड़ी, ह हाथी, ह हथौड़ी. नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क. आपके पास डॉट मेंशन है. आपको डॉट से स्टार्ट करना है.
ठीक है, ट्रेसिंग बहुत प्रॉपर वे में करिएगा। इस तरह से आपको ट्रेसिंग करनी है और लास्ट लाइन में आपको हे खुद से बनाना है। वही सेंटर की ग्रास 2 लाइन में आप बनाएंगे हे। इस तरह से आपको पेज नंबर 148 और 149 भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी हे की ही शक्ल है, आपको इसको ट्रेसिंग करनी है। और यहाँ पर हे की छोटी शक्ल है ह। हे की छोटी शक्ल क्या है? ह। ठीक है, इस तरह से आपको अपना ये पेज भी कंप्लीट करना है। पेज नंबर 150, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हे लिखा हुआ है। हे हाथी, हे से हाथी, हे से हार, लेकिन यहाँ पर हे की भारी आवाज़ भी मौजूद है। ये तो आपने पढ़ा हे, लेकिन हे की भारी आवाज़ क्या होती है? ह। वो थोड़ा भारी होके निकलती है। ठीक है, हे ह। अब यहाँ पर आइए, मैं आपको ह लिखना सिखाती हूँ। ठीक है, ये हे की भारी आवाज़ है। इसके बाद पेज नंबर 151, यहाँ पर आपको बहुत सारे हुर्फ दिए गए हैं और उनकी आधे अश्काल लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए, हुर्फ पढ़िए। आधे अश्काल का ये टॉपिक क्या है? आधी अश्काल। हर हुरूफ की आपको यहाँ पर आधी अश्काल दिखाई गई है, आपको उनको ट्रेस करना है। हुरूफ पढ़िए। फे, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, हे, ये आपके पास दोहराई करने के लिए दिया गया है, रिवीजन है आपका। आप एक बार फिर पढ़िए। फे की आवाज़ क्या होती है? फ के ऊपर एक नुक्ता। कॉफ, क के ऊपर 2 नुक्ते। काफ, काफ के ऊपर एक मरकज़। काफ की आवाज़ क्या होती है? क। लाम, लाम की आवाज़ होती है ल। मीम, मीम की आवाज़ क्या होती है? म। नून, नून की आवाज़ क्या होती है? न। हे की आवाज़ क्या होती है? ह। ये की आवाज़ क्या होती है? य। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पेज नंबर 151 कंप्लीट करना है। पेज नंबर 155, दिस इज़ पेज नंबर 155। तस्वीर के नाम का इब्तदाई हुर्फ दी हुई जगह पर लिखिए। आपको तस्वीर दी गई हैं, बहुत सारी तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं, इनको पढ़ना है और इनके हुरूफ का, इनका जो पहला हुर्फ है वो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है। अब आपके पास पहली तस्वीर किस चीज़ की है? गाय। गाय, जब आप गाय बोलेंगे तो आपको आपके मुंह से सबसे पहले आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? ग, गाय। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? गाफ, गाफ के ऊपर 2 मरकज़। फिर आपके पास क्या है? फ्रॉक, फ्रॉक। फ्रॉक बोलने के लिए आपके मुंह से सबसे पहले आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? फ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फे। आपके पास नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है? मोमबत्ती, मोमबत्ती। तो आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? म। मीम। इस तरह से आपको अपना ये पेज कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 180, 180। यहाँ पर आपको सीन से काफ तक की लिखाई करनी है। आपको ऊपर हुरूफ दिए गए हैं, आपको उनको देखकर सीन, शीन, स्वाद, ज़ौत, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, कॉफ, आपको इनकी लिखाई करनी है। कैसे करेंगे देखिए। सीन,
शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, नुक्ते लगाना नहीं भूलिएगा, नुक्तों पे हाथ ज़रूर फेरिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पूरी यहाँ पर हाथ फेरेंगे और यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। चले मैं लिखना सिखाती हूँ। सीन, शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, नुक्तों पे हाथ ज़रूर फेरिएगा और ऊपर से देख देख के लिखे स्वाद। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्वाद। स्वाद के बाद ज्वाद है और ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता है, तो जो ऊपर नुक्ता लगा हुआ है वो है जो ज्वाद के ऊपर लगा हुआ है। तो आप यहाँ से ज्वाद बनाना स्टार्ट करेंगे। ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज्वाद के बाद क्या है? तोए। अब आप तोए बनाइए। तोए के बाद जोए हैं, जोए के ऊपर भी एक नुक्ता है, तो जो आपके पास ये वाली ऊपर वाला डॉट है वहाँ से आप जोए बनाना स्टार्ट करेंगे और ये नुक्ता जोए के ऊपर लगेगा। एंड गैन के देखिए, गैन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नुक्ता ये रहा, तो आप गैन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गैन के ऊपर एक नुक्ता, फिर हमारे पास फे है, फे के ऊपर एक नुक्ता, ऊपर वाला नुक्ता जो है वो आप वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। फे के ऊपर एक नुक्ता। अब काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो ये 2 नुक्ते वो हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। अब काफ यहाँ से बनाएंगे, काफ के ऊपर एक नुक्ता। इस तरह से आप काम बिल्कुल तवज्जो के साथ कंप्लीट करेंगे और ये आपका उर्दू का इस वीक का काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ योर मैथ्स कॉपी and in this week we will do table of 2 complete in classwork and homework, and the next is spelling of 19. So let's start our work. अब आपको यहाँ पर 2 का टेबल पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। टीचर ने पहले हाफ हाफ करके लिखवाया था ना। नाउ वी विल राइट कंप्लीट टेबल। 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। डोंट फॉरगेट टू टच द बॉटम लाइन। देखें टीचर हर नंबर बॉटम लाइन तक बना रही है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, you have to complete classwork and homework both pages like this. Next work is spelling of 19. Read and write spelling of 19. Which number is this? 1 9 19, and the spelling is NINETEEN. NINETEEN. You have to learn to write at home.